respected delegates, dear colleagues of industry and my institute. Today I got a very constant time, 5 minutes, so we have to just share what we have done onto the objective, and we'll try to make it up in a constant time. So first thing I want to share, Government of Uttar Pradesh has taken an initiative to make a geoportal for a complete Uttar Pradesh. All departments will get an access through which we can deliver the all whatever they have data, functions and processes. That was the objective. So in this process, because Government of India, NITI Aayog has given direction that all projects will be your planning, monitoring, evaluation and operation. All 4 stages to be done on geospatial activity, on geospatial platform. So, object to this, we have tied up with Government of India, Ministry of IT. He has given us an opportunity to work with them. So NEGD is the partner for Uttar Pradesh, and we, RSEC UP, Science and Technology Department, we are collaborating with them. So in turn, we had made a one portal, one consolidated portal. Here is a consolidation of all the departments, because you need not to run to every one department's geoportal. Here is a one single consolidated one. This is one. Second, it is a G2G. Present constant is we have to make this whole solution on G2G facility. Later on, government will take a decision to roll out to in other domains. MIT has taken a collaboration with the Government of Uttar Pradesh for infrastructure part. So all the infrastructure which is required for geoportal, that is delivered by MIT, Government of India. So whatever application being done, developed with the Government of Uttar Pradesh, all departments, all 86 departments. Then again I have to share. Uttar Pradesh have 86 departments who had collaborated with us. Out of 86, we had made 83 department geoportal. Out of 83, there are around 240 sub-departments. Total 240 geoportals have been developed in 2 years' time. And in this process, we also have to create some data acquisition technologies, like some mobile apps that we have to also develop. So we created in the meantime to get the faster acquisition of the data. That is also being done on this. And everything, all this total infrastructure is going on a cloud. So department, Uttar Pradesh or user need not to maintain any infrastructure. This is all shared by MIT and is on the cloud. And again, one more point. In this particular geoportal activity, Government of Uttar Pradesh is not investing on any proprietary one. It resorted onto the open source. So all development, from data creation to geoportal creation and the mobile application development, all are open source. And so in total, this is the total infrastructure. This is the URL of the portal. Here you can directly access to seamless geoportal. This is the URL. You can, through addresses you can access, either directly go to this or rsec.up.org.in. This is another access point. Here you go, here you make another link directly to this geoportal. Here you find all 83 departments lined up. You have to find out which department, and the government will access, the department will access their own. Similarly, you see, just for example, Awas and Sahari Niyojan. This is one department. In this department, there are 3
5 to 10 sub-departments. So all sub-departments are also there and portal has been developed for them. So the data is consolidated at one single point on a cloud, no discrepancy, no duplication of the data. There is also thing and the portals are consolidated. For in this process, mobile application, the point was department sometimes doesn't have the data, so they want to collect it. Resources are there, people are there, department have the power. So what we done, we had taken the handheld devices and the mobile apps we created, and from this, including the positional point to GPS accuracy, whatever is available on their handheld device, as well as photo they can capture of the event. So these are capabilities we built onto the applications in a constant time and given to the department. So this kind of facility is being done for 20 departments. So they had asked for this. In this process, monitoring is also important. How will monitor how much has been collected, how many features, how many events have been collected. So for this dashboard to evaluate how many has been collected. So that dashboard is also for a monitoring purpose. This kind of interface is being created and maintained for all the departments, so that uniformity will be there. So to maintain the uniformity, we followed this kind of a getup. I'm just sharing you, during the COVID-19 case when it started, CM Saab has asked to collect community kitchen and shelter homes data, real time to be collected, and these facilities be shared to the public, and people may be able to get the facility. That was, and it was monitored every day. So for this, in a 3 days time, we developed the mobile app, what we have shared you in the previous days. And the data what being collected by the field staff of the government, I mean district collectors and their staff. They have collected the whole these points, these informations, shelter homes and community centers. It's been recorded onto, and after enough data and quality, the government UP has requested to Google also that can you help us. So Google has also given a kind of opening and they were open also. So they had taken that data, pushed on to the Google. So in Google, these shelter homes and these 2 tags were been added, and it was accessed to the public during that time. That is the portal. Thank you very much. Thank you, Mr. Sushil. This I also would like to invite Mr. Anand Sirohi, Director Key Account Urban Navigation, for the next presentation. Standard level अंग्रेजी की बात, remote sensing आ गया, simple अंग्रेजी बोले समझ में आता है, remote sensing Mr. Anand Sirohi, please. तो स्टेट गवर्नमेंट के लोग ऐसा हिंदी में सब आता है, simple is allowed on this, तो multiple की बात, इसीलिए उनका मुस्लिम भी नहीं है, हम क्या करें? हिंदी में शुरू कराइए भाई, हिंदी में करिए, हिंदी ट्रिपल केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। सर भाषा तो मुझे भी आपकी ही बोलनी पड़ेगी, वरना ये फिर जो गैप अभी है ना कि कोई इस लेवल पे बात कर रहा है, कोई इस लेवल पे, वो मैच नहीं करेगा। भाषा तो मुझे बोलनी पड़ेगी जो हमारी कॉमन होगी। पहले जो आपने करता है, गुड आफ्टरनून, आनंद सिरोही, मैं चुंबल से, और मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मॉर्निंग से जो मैं सुना दैट वाज अराउंड रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग,
डेटा, जियोस्पेशल डेटा, एंड अभी जो चंद्रा साहब ने दिखाया वो भी दैट वाज अराउंड पोर्टल ऑन द डेटा इन द रिसोर्सेज, वेदर इट इज वाटर रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज। मैं थोड़ा सा हट के दूसरी तरफ लेके चलूँगा कि इस डेटा को, जिसको कि हम सब डिफरेंट लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे बैकबोन कहाँ पे है। एंड मैंने संजय को सुबह ब्रेकफास्ट में प्रॉमिस किया था कि जहाँ पे आप अपना डिस्कशन ला के पॉइंट पे छोड़ोगे मैं वहाँ से शुरू करूँगा। तो संजय ने कॉमन प्लेटफॉर्म की बात की थी और मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। डेटा, नाउ वी ऑल स्पोक अबाउट डेटा। The only difference which I will make in this data is the common data environment, and this will start right from Trimble. I think now people know whom we are. The only one thing which I would like to say that although we are a global company, लेकिन हमारे इंडिया में we are about 1200 people who are working in India, और जो कि इंडिया में ही प्रोडक्ट्स को और सॉल्यूशंस को, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज तीनों को कंबाइन करके हम कोशिश कर रहे हैं हाउ डू वी सॉल्व द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। Now I will need your focus here. Most of the discussions we had right from the morning was around the first piece which I put here, geospatial data. Now some of you might have used BIM data. Yes, no? Yeah, I have two people who have used BIM data. Others, they have not used. किया होगा, CAD data यूज किया है, ओके, 3D data यूज किया है। 3D मतलब ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ऑफ योर रोड, ऑफ योर, किया है, तो किसी ना किसी शेप में यूज किया होगा। और तीसरा एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइम में कि इधर भी यूज प्राइमावेरा, MS प्रोजेक्ट, और सर आपसे मैंने सुना आपने कुछ एप्स डेवलप किए हैं इस डेटा को फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइमलाइन, कॉस्ट कैसे कंज्यूम हो रहा है और उस डेटा को यूज करके हाउ वी आर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। सम पीपल आर यूजिंग द वर्ड मॉनिटरिंग, सम पीपल आर यूजिंग द वर्ड ट्रैकिंग ऑफ दैट थिंग। सो एंड अगला चीज आता है मशीन एंड इक्विपमेंट। किसी ने कंस्ट्रक्शन बिना मशीन के तो नहीं किया होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर ने किया होगा। So the point which I am trying to highlight here by putting all these silos, these are still being used by all of us in this room as well as the people who are connected with you, but they are still being used in silos. ये सब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में यूज हो रहा है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे, और मैंने सर से लंच टेबल पे सुना था उन्होंने कोशिश की है, और सुबह सेक्रेटरी साहब ने भी जो बोला था, उन्होंने एक ई प्रहरी या कुछ बताया था। I think that is a wonderful solution that is being developed, और मेरी कोशिश उसी तरफ होगी कि what can we do together to use this data which is getting created right from survey, LiDAR when जो कि यूपी आरसेक वाले कर रहे हैं, how do we take this data to the as-built situation, because as-built पे तो आना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट का काम कंस्ट्रक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन का जो आपका वर्कफ्लो है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, यू आर पुटिंग द डेटा एट द कोर एंड देन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, NHI उसको डेटा लेक नाम दे रहा है, मे भी हो सकता है यूपी में कुछ और नाम से हो, बट अल्टीमेटली वी आर सेइंग वन डेटा विच इज गोइंग फ्रॉम सर्वे टू द एस-बिल्ट, एंड आई विल शो यू हाउ वी आर डूइंग इट। एंड फिर उस डेटा पे हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के we are putting this data into a visual format, in a meaningful format, and this process has begun, and I try to just show what is happening and how. This is the most important slide which I have, and I will try to convey what I am trying to convey. अगर समझ में आ जाएगा तो एक बार एक इशारा कीजिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो I will spend some more time on this. So मेरा पॉइंट ये है, so Trimble या हमारे जैसी और कंपनी, हम अकेले नहीं, we are trying to create a data framework जिसमें कि एक जो आपका कॉमन डेटा इन्वायरमेंट है, उसमें जो आपका बेसिक सर्वे डेटा आ रहा है जो कि आपने आउटसोर्स कर दिया है। मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, चाहे PWD हो, खुद सर्वे नहीं करते, सर्वे आप बाहर से कराते हो, आउटसोर्स करते हो। नाउ मेरी अब आपसे एक सवाल है और उस सवाल का जवाब मत दीजिएगा। व्हाट इज द प्रोसेस यू हैव
टू चेक दैट डेटा कि वो डेटा करेक्ट क्वालिटी का है या नहीं। कोई बजट नहीं, सॉरी सर, कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है ना, हम वहां पे भी रुकते हैं। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, लुक एट दिस, ये जो बीच का जो ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, अब आप उसको देखिए, वी आर ट्राइंग, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन बिल्ड अ क्वालिटी चेक ऑन द डेटा, चाहे वो रेफरेंस डिजाइन मॉडल से आ रहा है, ज्योमेट्रिक मॉडल से, क्योंकि जो सर्वे हुआ उसी सर्वे डेटा पे आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, उसी सर्वे से आपकी डीपीआर बनेगी। डीपीआर में क्या आता है, कैड फाइल आती है, एस्टिमेट होता है, एक्सेल फाइल आती है, और वो सीडी में आती है, करेक्ट। उस डेटा को, जो पहले डेटा सर्वे है, उसके साथ में हम उसको कनेक्ट करके आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। टेंडर जब आया तो जो भी आपने कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग्स बनाई थी उसके बेस पे आपने बिड मांग ली, कॉन्ट्रैक्टर ने जो बनाया और एज बिल्ट आपको किस फॉर्मेट में दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि वो एज बिल्ट वो कैसे आया, क्योंकि अगर एज बिल्ट नहीं आएगा तो आप उसको ऑपरेट और मैनेज नहीं कर सकते। चाहे वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो सीवेज हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हो। ड्रेजिंग की भी हम बात कर रहे थे, जिसमें कटर सेक्शन ट्रेजर्स और वो सब। सो अनलेस माय सर्वे डेटा, माय बिम डेटा, माय कैड डेटा, माय अदर डेटा विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट, अनलेस आई क्रिएट अ फ्रेमवर्क कि ये डेटा मेरा कॉमन डेटा इन्वायरमेंट में आए, एंड आई विल यूज सम वर्ड्स, जैसे आप जो लोग ट्रिम्बल का सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, आप टीबीसी यूज करते होगे, ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर। ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर क्या करता है, फाइनली जो डेटा आप लेके आ रहे हो उसका टिन मॉडल स्टोर करता है, राइट, प्रोसेस करता है डेटा को, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रिम्बल सॉल्यूशंस, बल्कि अगर आप टॉपकॉन का, लाइका का, किसी का भी यूज कर रहे हो। और मेरा डिस्कशन आज की डेट में ट्रिम्बल को लेके नहीं है, मेरा डिस्कशन है हाउ डू वी डू इट टुगेदर अराउंड द डेटा, राइट। सो इसको करके we and as a government you have to be the owner of the common data environment, and this could be anything, and my point is tin is the best, and whatever quantities are being estimated that is data driven, it is not on estimate कि 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे करने में मेरे को 40 लाख लगता है, 1 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो करने में मुझे इतना लगता है, that is all estimate. Every project is different, every detail is different. You will agree with me in totality because I am working with the key stakeholders of the country, और मुझे पता है जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। So that common data now people like you would be using for visuals, strategy, tender वो बनाने में, right from visual, 3D, artificial intelligence, AR, VR, augmented reality, virtual reality, and then some people will create into GIS, planning and development, and my focus is more or less on infrastructure. So although the same framework will be working for resource management also, but my focus of this discussion is more on the infrastructure side, and then project delivery में 3D BIM and my integrated project and program management. And this is the most important point. चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर कर रहे हो, मेरा मानना है वो भी आप खुद नहीं करते, आपके लिए एईकॉम या कोई भी ऐसी कंपनी है जो आपके लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट करती है, लेकिन वो डेटा वो कैसे फीड करती है, एक्सेल में फीड कर दिया मैनुअली। नाउ क्या वो सच है मुझे नहीं पता, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस है, उसने जो लिख दिया वही है, चाहे वो आपका प्राइमावेरा में होगा। And I'm just trying to say how this data we can take directly from the machine which is doing this construction. कुछ क्लैरिटी हुई स्लाइड से जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर, पीछे से। So we'll try to see how do we achieve it, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ we have to do it together because I'm trying to give a भाषण, but this भाषण has to come into some reality. इंपॉर्टेंट वन। सो ट्रिम्बल क्या कर रहा है, हम इस डेटा ड्रिवन अप्रोच को यूज करके जो सर्वे हुआ है और जो उस पर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग हुआ है, चाहे वो सिविल 3D में हुआ है, चाहे वो MX में हुआ है, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने वो किया है। एक पीस में भूल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट प्लानिंग, लेकिन शायद मेरा टाइम अलाउ नहीं करता है। अलाइनमेंट प्लानिंग में वी हैव द बेस्ट आई वुड से, और मैं इसलिए नहीं कि मैं ट्रिम्बल के लिए काम करता हूँ, ट्रिम्बल के पास में एक सॉफ्टवेयर है क्वांटम, मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा।
जो कि कॉन्स्टेंट में पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स आपके, सोशल कॉन्स्टेंट्स आपके, इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट जो सुबह सेक्रेटरी साहब ने बोला था, सबको लेके आपको कम से कम 150 अलाइनमेंट देता है। एंड देन यू कैन मेक द बेस्ट चॉइस कि मेरे पास वहाँ लैंड अवेलेबिलिटी का कॉन्स्टेंट है या कोई टेम्पल है या मॉस्क है, व्हाट कैन आई डू। और ये मैंने हाई स्पीड रेल के साथ मैंने और मेरी टीम ने किया, एंड वी आर प्राउड टू से इट हैज़ बीन मैंडेटेड इन हाई स्पीड रेल। जितने अगले कॉरिडोर आ रहे हैं उन सब में मैंडेट है। 2 नवंबर को मैंने फाइनल प्रेजेंटेशन की थी, 6 नवंबर को मैंडेट हुआ है, 28 नवंबर को मेरा पहला ऑर्डर आया था सीकॉन सर्वे को। और उसमें आपको मैं सिंपल सी चीज़ बता दूं, उनका जो अलाइनमेंट घाट सेक्शन का था नागपुर से लेके मुंबई वाला 95 किलोमीटर का था, जो कि उन्होंने गूगल पे लेके और जो सर्वे के जो टिपिकल टेक्नोलॉजीज होती है वो यूज़ करके किया था। और हमने उसको उनको सिंपल डेटा जो उन्होंने दिया था उस पर 85 किलोमीटर उनको निकाल के दिया, क्योंकि पीपल डू विदाउट पुटिंग ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स की अगर मेरा हाई स्पीड है तो मेरा रेडियस इतना होगा, मेरा ग्रेडियंट इससे ज़्यादा नहीं होगा, और अगर कहीं पे भी ब्रीच होगा उसका वो करने नहीं देगा या आपको फिर उसको ओवररूल करना पड़ेगा। ठीक है, आई कैन टॉक अबाउट इट बट मे बी यू नो इफ टाइम। सर मैं टेक्नोलॉजी इनेबलर जो कर रहे हैं दिल्ली बनारस में राइट्स कर रहा है, राइट्स को हमने टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट किया है। एंड आज की डेट में जितने भी पैकेज आ रहे हैं, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल टूल, अगर मैं डिटेल में जाके आपको दिखाऊंगा यू विल से दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स, नथिंग एल्स। सो व्हाट आई सेड इज दैट जो सर्वे डेटा है और जो उससे मॉडलिंग हुई, नाउ वेदर दैट मॉडल विच हैज बीन डन बाय माय डिजाइन कंसल्टेंट इज इट कंस्ट्रक्टेबल, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट, क्योंकि सर्वे हुआ था 7 साल पहले, मॉडलिंग हुई आज, टेंडर निकला मे बी जब भी हुआ है, इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेबल। एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ अवर कंस्ट्रक्टर्स दे मेक मनी इन चेंज मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, दे डू नॉट मेक मनी इन कोटिंग द राइट क्वांटिटीज। अगर मैं जहां गलत कहूं हाथ उठाइएगा, क्योंकि मैं आपके साथ में सीखना चाहता हूं, करना चाहता हूं। ठीक है, सो ट्रिम्बल का जो मेन चीज है कंस्ट्रक्टेबल, कनेक्टेड, कंटेंट इनेबल्ड। कंटेंट इनेबल्ड का क्या मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर में, जैसे टेक्ला में किसी ने ब्रिज बिल्डिंग में काम किया है, स्ट्रक्चर में काम किया है, टेक्ला फॉर स्टील और फॉर टेक्ला भी हमारा प्रोडक्ट है, स्केचअप भी हमारा प्रोडक्ट है, बट इस समय में हमारे से ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। सो उसमें आपके स्टील के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो कंटेंट इनेबल्ड है, आपको खुद करना है। सो वी आर फोकसिंग ऑन 3 थिंग्स, कनेक्टेड, वेयर वी आर एबल टू कनेक्ट मैन, मशीन and quantities, and I will show you because I have some videos how we do it। and आपकी जो पूरी वर्कफ्लो है, जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, राइट फ्रॉम प्लानिंग टू ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उसके डिफरेंट मैंने एस्पेक्ट्स दिए हैं कि डिलीवरी स्ट्रेटेजी क्या होगी प्रोजेक्ट की, ठीक है, वो सब प्लानिंग में आएगा। डिलीवरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे होगा, कुछ पार्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट में आएगा। एंड देन वी हैव द एबिलिटी टू टेक दिस डेटा डायरेक्टली टू द मशीन, कि मशीन का hydraulics we would be able to control automatically using the geospatial data. Same data that we have modeled and the geometric model I would be able to convert into a machine readable format. Sir अभी तक ठीक है, बहुत ऊपर तो नहीं? सही है, सही। Okay. Can I get a bottle of water? Neeraj, thank you so much. क्या मैं तुमसे 5-7 मिनट एक्स्ट्रा आज मांग सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक व्हाट आई एम टॉकिंग मेक्स सेंस। चलिए मैं जल्दी करता हूँ। अच्छा, अब आपका होगा कि हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और जीएनएसएस इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। कुछ आप लोगों ने खरीदे हुए हैं, वैन खड़ी है बाहर, जो भी है। सो ट्रिम्बल इक्विपमेंट बनाता है। ट्रिम्बल एक ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर करके सॉफ्टवेयर क्लाउड प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे कि आप डेटा को लेके उसको एनालाइज करके एंड देन यू कैन टेक इट टू अ डिजाइन एनवायरनमेंट, द सेम डेटा विच विल बी मूविंग टू द डिजाइन एनवायरनमेंट, एंड यू विल बी एबल टू डू दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो टनलिंग का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो रेल का हो, चाहे मेट्रो का हो। अगला पार्ट आता है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आई एम टेकिंग इट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। सो वर्टिकल में जैसे आपका एयरपोर्ट का है तो उसमें टर्मिनल आएगा या बिल्डिंग्स आएंगी या ब्रिजेस आएंगी,
So Trimble has solution, जैसे मैंने बोला Tekla है, वो सब है. I would be able to take the same model to the 3D geometric modeling of the buildings and using the same thing, connected, constructible, content enabled और position तो मेरे DNA में है. Anything that Trimble talks is position, X, Y, Z, right? कैसे कर रहे हैं? ये दिल्ली एयरपोर्ट का एग्जाम्पल है. हम क्या कर रहे हैं? सो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं बिजनेस एज यूजुअल. एक आदमी खड़ा है, वो सर्वे पॉइंट्स दे रहा है, आप टोटल स्टेशन से नाप रहे हो और ये मशीनें चल रही हैं. राइट साइड में हमने बेस स्टेशन कोर्स की बात हुई थी. अगर कोर्स है और डेंसिफाइड कोर्स है, बेस स्टेशन की जरूरत नहीं. आई वुड बी एबल टू ब्रिंग माई इंटायर प्रोजेक्ट टू वन कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा सेम कंट्रोल पॉइंट्स यूज करेगा, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा. माई पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज हाईली रिड्यूस्ड. किस टाइप के फील्ड सॉल्यूशंस हैं? मैं आपको अर्थवर्क की बात करता हूं, जहां पे कि आपके ग्रेडर्स हैं, डोजर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, स्क्रैपर्स हैं एंड बेनिफिट्स नीचे लिखे हैं. आई विल नॉट रीड एवरीथिंग बट आई एम जस्ट सेइंग रोड कंस्ट्रक्शन और अर्थवे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में मेरी साइकिल्स क्या क्या है. कॉम्पैक्शन है, पेविंग है, ठीक है, उसके बाद मेरी टॉप लेयर है, उसके बाद एंड देन चेकिंग. सो अभी क्या होता है, मैं हर पॉइंट को चेक करने की, वैलिडेट करने की कोशिश करता हूँ. इफ आई डू द कंप्लीट टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट, आई वुड डू सम चेक्स टू एटलीस्ट सर्टिफाई, क्योंकि मेरा जो वर्क फ्लो है आज की डेट में उसमें किसी का सिग्नेचर चाहिए. सो आई विल स्टिल डू चेक्स बट इंस्टेड ऑफ 100 चेक्स वी विल डू 5 checks. Milling, filling, and then beauty is here I have taken the data to the machine. Now the next thing is, how about connecting all the machines which are working on one side? And then the next set of beauty is, the secretary wants, I want to connect all the sites. And I want this in a dashboard in my room, because we are able to cover surface to surface. So I can exactly tell you कितना volume work हुआ है और अभी as built की situation क्या है. मैं कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो हो रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ. ये एग्जाम्पल है 3 वीडियो छोटे छोटे से 30 सेकंड्स के. ये बिजनेस एज यूजुअल है. बीच वाला ऑटोमेटेड है, जहाँ पे ना कोई स्ट्रिंग लाइन दे रहा है ना कुछ दे रहा है. मेरा कंप्लीट हाइड्रोलिक आई एम मैनेजिंग यूजिंग द जीपीएस टेक्नोलॉजी. एंड इफ आई एम एबल टू कंट्रोल द मशीन्स आई कैन यूज माई एसएक्स 24 आवर्स, बिकॉज फिर मेरे पास दिन और रात का कॉन्स्ट्रेंट भी खत्म हो जाता है. ओके, सो एम आई हियर टिल नाउ? ये क्लियर हो गया कि हमने डेटा कैसे कैप्चर किया, इस डेटा को मैं मशीन पे कैसे लेके गया, उसका हाइड्रोलिक्स कंट्रोल किया और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे किया. और क्योंकि हर एक मशीन पे मेरी जीपीएस डिवाइस लगी है, तो मेरा एज बिल्ट डायरेक्टली फील्ड से ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम से मेरे ऑफिस में आ रहा है. सो आई एम एबल टू कनेक्ट फील्ड टू ऑफिस. आई एम सो सॉरी. ओके, लेट मी ट्राई. ये है कॉम्पैक्शन कंट्रोल. टाइम नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता, बट व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ टेस्ट बेड. उस पर जो मटेरियल यूज होना है, कौन सा कॉम्पैक्टर यूज होना है, उसके बेस पे कितने उसमें वो हुए. और एक चीज दिखाऊंगा, हाउ वी वुड लाइक टू डू इट. अल्टीमेटली मैं इसको ऑपरेटर को बोलूंगा विच इज अ अनस्किल्ड लेबर, कि बेस्ड ऑन द जीपीएस टेक्नोलॉजी यू पेंट, चल क्यों नहीं रहा वीडियो, यू पेंट एवरीथिंग इन ग्रीन. सो जैसे ही उसके 3 पास होंगे, वो सॉरी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पास होंगे, uses color scales can be set independent measurements and correlation और जहाँ पे 4 चक्कर and setting वो ऑरेंज होगा, values. जहाँ ओवर कॉम्पैक्शन होगा. In many ways, IC makes pathing ground a little like painting with a roller. अच्छा है. The operator uses as many passes as required to get the design. And then finally dashboard, which will come to your office. And before I finish, so actually what is happening is, you are doing tenders, supports and bid, which is your job. Then somebody, your contractors and the others, they are using this positional technology to construct. And then this is data-based, model-based construction which is happening on Delhi airport. जो बीच वाला है, ये live example है. और finally है, what tools and technologies are using to make it happen. And ये सब आप use करते हो. एंड ये फाइनली है मेरा एक छोटा सा वीडियो, जिसके साथ मैं खत्म करूंगा. ऑगमेंटेड रियलिटी. पल्लव कैन शो यू. हमारा एक टूल है जो येलो आपको दिख रहा है, दिस इज द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज हैंड हेल्ड डिवाइस विच विल गिव यू करेक्शन सिग्नल. एंड ये जो उस पे मोबाइल लगा है,
this mobile will be your actual mobile that you are using, and I would be having my as